See students, up till we had studied the stability of cyclohexane. That cyclohexane is very stable compound. Now I will tell you that now we will discuss the chain form and boat form in deep. This is the chain form of the cyclohexane and this one is the boat form. This thing I have told you previously also. And these are the 6 carbon atom of chain form and these are the 6 carbon atom of boat form. Now let me show you the axial and equatorial hydrogen atom. This all carbon atom are having two hydrogen atom. This carbon is having 2 hydrogen atom. So this is 1 hydrogen atom. This is 1 hydrogen atom. This is 1 hydrogen atom of other carbon. These are axial hydrogen atom. Axial hydrogen atom, which is represented by A. It is also represented by A. And these 2 carbon atom also having 1 axial. These are the axial hydrogen atom with all carbon atom. Now we will see the equatorial hydrogen atom. Now this carbon is having, this is the equatorial with this carbon atom. This is the equatorial with the other carbon atom. And to this carbon and to this carbon, the equatorial, how we will show the equatorial carbon atom? It is the equatorial carbon atom and this one is the other equatorial carbon atom. Means these are the hydrogen atoms with each carbon atom in case of chain form of cyclohexane ring. Now in boat how we will show the hydrogen atom? In boat also each carbon atoms are having two hydrogen atom. So with this carbon atom, this is 1 hydrogen atom, this is one other hydrogen atom. With this carbon atom and this is the other hydrogen atom. With this carbon atom, these are 2 hydrogen atom, these are 2 hydrogen atom. With this carbon atom, this is 1, this is the other one. With this is the one, this is the other one. Like this are the hydrogen atoms with each carbon atom. Okay, so there is a technique to draw this hydrogen atom that I will explain in the other part, that I will explain front. So how to draw this hydrogen atom and to draw this hydrogen, and there is one technique. So I will tell you this technique, how to draw this hydrogen atom. Now see this hydrogen atom in this chain form and boat form. See, whenever there is carbon bond, this is carbon bond, carbon single bond, carbon single bond. So if there is carbon single bond in any structure, whether it is a propane, whether it is a butane, in any structure, if there is a carbon bond, it means there will be the rotation, है ना, वहाँ रोटेशन होगा. जहाँ कार्बन बॉन्ड रहेगा वहाँ रोटेशन होगा. इट मीन्स यहाँ पे हर जगह रोटेशन होगा. इन 2 कार्बन के बीच में रोटेशन होगा, इन 2 कार्बन के बीच में भी रोटेशन होगा, इन 2 कार्बन के बीच में भी रोटेशन होगा. सो बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द कार्बन बॉन्ड, चेन फॉर्म अंडरगो चेंज टू बोट फॉर्म. चेन इज चेंजिंग टू बोट फॉर्म. बोट फॉर्म में कैसे चेंज हो रहा है? रोटेशन की वजह से. फिर इससे बोट चेंज हो रहा है चेन में, किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से, क्योंकि इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड. सो यहाँ पे भी रोटेशन हो रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड का, इसलिए ये भी कन्वर्ट होगा चेन फॉर्म में. तो ऐसे ही होता रहता है. सपोज हमारे पास, सपोज वी हैव वन बॉटल and it is filled with cyclohexane. It means so many molecules are there of cyclohexane. In this, 80% of molecule of cyclohexane are in
chair form, and 20% of are in boat form. ठीक है ना, जो चेयर फॉर्म है वो बोट फॉर्म पर से कन्वर्ट हो जा रहा है, बोट फॉर्म पर से चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन इन दोनों में से ये तो कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, बार बार ये कन्वर्शन शुरू है क्योंकि रोटेशन, कंटिन्यूस रोटेशन हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। कार्बन कंटिन्यूस रोटेशन हो रहा है, इसलिए ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है। लेकिन इन दोनों में से सबसे स्टेबल जो है चेन फॉर्म है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल है चेन फॉर्म में। तो जैसे ही चेन फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो रहा है बोट फॉर्म में, विथ इन सेकेंड के अंदर पट से चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से रोटेशन हो रहा है तो फिर से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे वो शुरू रहेगा। और इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं, है ना। चेन और बोट के बीच में भी बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं। कैसे, कौन कौन से फॉर्म बनते हैं? सबसे पहले चेयर फॉर्म है, तो उसके बाद बनेगा हाफ चेयर, उसके बाद बनेगा ट्विस्ट बोट, और उसके बाद बनेगा बोट। मतलब चेयर से बोट फॉर्म में आने तक ये सारे कन्फॉर्मेशंस भी बनते हैं। तो ये सारे कन्फॉर्मेशन के शेप्स मैं बताऊंगी सामने। अब सबसे पहली बात हमको और क्या स्टडी करनी है कि सी नाउ वी विल स्टडी द न्यूमैन प्रोजेक्शन। नाउ वी विल स्टडी द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेन। सबसे पहले चेन फॉर्म, एक चेन फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेन का चेन फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा चेन फॉर्म, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का चेन फॉर्म। अभी इसका हम लोग बनाएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसका हम लोग बनाएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। और फिर से बोट फॉर्म है, ये बोट फॉर्म है, बोट फॉर्म का भी बनाएंगे हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसका भी बनाएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, दोनों का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, इसका भी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे। अब इसका कैसे प्रोजेक्शन बनेगा, ये एक ही है, ठीक है। ये कार्बन आइटम है, ये कार्बन आइटम है, ये एक और ये एक। इनमें से ये जो 4 कार्बन आइटम है 1 2 3 4, ये प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना, ये प्लेन में लाई करते हैं। और ये जो कार्बन आइटम है और ये जो कार्बन आइटम है, ये फ्रंट में है और ये बैक में है, समझा। ये फ्रंट में है, बैक में है। जैसे ये चारों कार्बन आइटम प्लेन में लाई कर रहे हैं। सपोज एक कार्बन आइटम है, इसके पास 4 हाइड्रोजन आइटम है, 4 हाइड्रोजन आइटम है, तो ये चारों हाइड्रोजन आइटम प्लेन में लाई नहीं करते, इसमें से ये 2 प्लेन में लाई करते हैं। ये पीछे की तरफ होता है और ये सामने की तरफ होता है। जैसे ये मेरे बैक साइड में रहेगा और ये मेरे सामने रहेगा और ये पीछे रहेगा। वैसे इसमें भी ये 4 कार्बन आइटम प्लेन में लाए रहेंगे, एक कार्बन आइटम पीछे साइड में रहेगा और एक कार्बन आइटम सामने साइड में रहेगा। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। इसमें भी ये जो 4 कार्बन आइटम ये प्लेन में लाई करेंगे, एक पीछे रहेगा और एक कार्बन आइटम सामने के पोजीशन में रहेगा। तो ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये तो इसमें कन्वर्ट होता है, ये कैसे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ रोटेशन की वजह से कन्वर्ट हो रहा है। इसके बॉन्ड में रोटेशन हो रहा है, बॉन्ड में कार्बन बॉन्ड में रोटेशन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है बोट फॉर्म में, है ना, कन्वर्ट हो रहा है बोट फॉर्म में। हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं इसका। और न्यूमैन प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, हम इस कार्बन आइटम को यहाँ से अगर देख रहे हैं, यहाँ से इस कार्बन को देख रहे हैं हम लोग, तो ये कार्बन आइटम तो हमको पहले दिखेगा और इसके पीछे हमको ये दिखेगा, है ना। हम लोग अगर इस कार्बन आइटम यहाँ से देख रहे हैं, इस पोजीशन से देख रहे हैं हम लोग इस कार्बन आइटम को, तो ये हमको ये हमारे आंखों के सामने पहले ये दिखेगा, इसके पीछे एग्जैक्टली पीछे ये दिखेगा हमको। तो पहले हम इस कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया सामने वाला कार्बन आइटम और ये हो गया पीछे वाला कार्बन आइटम।
है ना, ये सामने वाला कार्बन आइटम और इसके पीछे एग्जैक्टली ये रहेगा, तो ये पीछे वाला कार्बन आइटम। अब हम इस कार्बन आइटम को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं इस कार्बन आइटम को भी। तो इस कार्बन आइटम को यहाँ से देखते हैं, तो ये सामने वाला कार्बन आइटम और ये कार्बन आइटम एग्जैक्टली इसके पीछे है, तो ये वाला पीछे वाला कार्बन आइटम। ठीक है, ये हो गया। तो ये 4 कार्बन आइटम होंगे, ये सामने वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, ये सामने वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन। अब हमको ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बनाना है, ये तो कार्बन आइटम बनाना है। तो एक तो इससे अटैच है CH2, एक सामने वाले से अटैच है, सामने वाले से अटैच है ना। ये कार्बन आइटम ये दोनों सामने, ये दोनों सामने वाले हैं, ये दोनों सामने वाले हैं, ये दोनों सामने वाले हैं, इससे ये कार्बन अटैच होगा डायरेक्टली। और ये पीछे वाले हैं, ये पीछे वाले, तो इससे एक अटैच होगा। पीछे वाले से ये पीछे वाले से ये अटैच है, पीछे वाले से ये अटैच होगा। सबके हाइड्रोजन बना दो, सबके हाइड्रोजन आइटम, इसका हाइड्रोजन आइटम, इसका, सब कार्बन आइटम का 2 हाइड्रोजन आइटम है, इसका एक हाइड्रोजन आइटम, इसका अदर हाइड्रोजन आइटम। फिर ये भी है कार्बन आइटम, पीछे वाला है, ये कार्बन पीछे वाला कार्बन आइटम है ये वाला, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, ये भी पीछे, ये वाला पीछे वाला, इसका एक, इसका एक। तो ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर फॉर्म। अब इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन सेम ऐसे ही, बस इसका रोटेशन इसको अभी देखना नहीं है, सेम इसी का रोटेशन हो रहा है, हमें पता है ये चेयर फॉर्म है और ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना। मतलब इस फॉर्म को अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, इसको अगर इसका यहाँ से देख रहे हैं, इस कार्बन को यहाँ से देख रहे हैं, इस कार्बन के स्टेट को यहाँ से देख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। और इसका रोटेशन होने के बाद कैसे बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग। सेम है, पीछे वाला कार्बन, सामने वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन, सामने वाला कार्बन आइटम। फिर ये CH2, ये CH2 है ना, इसके हाइड्रोजन बना लो पहले, इसके हाइड्रोजन, रोटेशन होगा। अब रोटेशन होने के बाद क्या होगा कि ये जो नीचे वाला CH2 है ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मतलब एग्जैक्टली इसके पीछे आ जाएगा, है ना। एग्जैक्टली रोटेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें रोटेशन हो रहा है, तो एग्जैक्टली ये जो नीचे वाला है ये एग्जैक्टली इसके पीछे आ जा रहा है। जो इसके पीछे आ जा रहा है तो उसको हम तो देख नहीं पाएंगे उसको, इसलिए एग्जैक्टली इसको नीचे दिखा रहे हैं हम लोग, दिखता नहीं है। रोटेशन होने के बाद एग्जैक्टली इसके पीछे आ जाता है, तो ये कार्बन दिखता नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली इसके नीचे दिखा देते हैं हम लोग। वैसे ही ये हाइड्रोजन भी जी, इसके जो हाइड्रोजन आइटम है, ये वो भी एग्जैक्टली इन हाइड्रोजन के पीछे छुप जाते हैं, तो वो भी हम लोग साइड में दिखा देते हैं। तो इस तरह होते, ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ बोट। ये बोट का न्यूमैन प्रोजेक्शन है और ये है चेयर का न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ठीक है।